Okay, in last lecture we have been dealing with the Lux flood concept. In Laurie Bronsted concept, we have seen before few lectures. Laurie Bronsted concept. It is speaking in the terms of proton, isn't it? According to Laurie Bronsted theory, any acid is a proton donor and base is a proton acceptor. So whatever acid base concept it is confined, it is restricted up to only acid basis, only protonic system. It cannot be applied to non protonic system. जो सिस्टम के अंदर में प्रोटॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते. इसलिए नया कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसको हम लक्स फ्लड कंसेप्ट कहते हैं. ठीक है. It was put forward, basic idea was put forward in 1939 by the scientist Lux. Why he put forward this concept? In order to explain the acid-base reactions which are possible in non-protonic system. ठीक है. जो systems के अंदर में प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन से ऐसे सिस्टम और particularly for the oxide systems, ऐसे oxide system. ठीक है. So it was put forward in 1939 by Lux to explain the feasible means possible acid base reaction which are possible in oxide system without the help of protons. उसके अंदर में protons involve नहीं होते, ऐसे involvement नहीं होता. ऐसे reactions explain करने के लिए ये theory का application है, use है. ठीक है. This approach was extended by Flood in 1949. इन्होंने extend किया, फैलाया आगे. इन्होंने जो बेसिक अप्रोच दिया था लक्स, इसको फैलाने का काम, एक्सटेंड करने का काम ये फ्लड साइंटिस्ट ने किया 1947 के अंदर में. ठीक है. He applied to non-protonic system which were not covered by Laurie-Bronsted concept. Laurie-Bronsted concept ने theory के अंदर में non-protonic system को cover नहीं किया था, वो cover किया है इन्होंने. So according to Lewis, this Lux flood definition, what is base? Base is an oxide ion donor. बेस क्या करता है? ऑक्साइड आयन डोनेट करता है. ऐसा देख रहे हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इज देयर. इन ऑल दीज रिएक्शंस, come to the next slide. It will you come here. Now here, this is the base. What base is doing? Base is donating the oxide ion. Okay. यहाँ पर ये सब रिएक्शंस में कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और ये हमारा सोडियम ऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं? O2 माइनस आयन. ठीक है. ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहे हैं. यहाँ पर ये सिलिकॉन ऑक्साइड को, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्साइड है. ठीक. उसको ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, उसको डोनेट करने का काम ये कर रहा है. ठीक है. इसलिए therefore all these are bases because they are the donor of the oxide ion. And what is acid? Acid, they are the acceptors of acid, acceptors of oxide ion. ये सब क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑक्साइड आयन. ठीक है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. बेस क्या करता है? ऑक्साइड आयन डोनेट करता है. ठीक है. इट इज द डोनर ऑफ ऑक्साइड आयन एंड acid is a acceptor of that O2 माइनस ऑक्साइड आयन. ठीक है. और दोनों को मिलाकर यहाँ पर कंपाउंड तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, एडिशन प्रोडक्ट तैयार होता है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस Lux flood definition concept, compounds like calcium oxide, barium oxide, Na2O, these are the oxide pair donors, oxide ion donors. And acid like these compounds, molecules like CO2, P4O10, phosphorus oxide, oxide of phosphorus, SiO2,
ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, these are the acceptors of oxide ion, so therefore they are termed as the acid. Okay, now the concept may be clear to you. So concept is particularly applicable to those reactions which takes place at higher temperature. It is applied to those reactions which are operating at higher temperature. That is in metallurgical operations. मेटालर्जिकल जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और से उनके जो मादनियात होते हैं, मादनियात में से मेटालर्जिक प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं, ठीक, इन दोज रिएक्शंस। और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक्स एंड ग्लास, सिरेमिक्स इनऑर्गेनिक पाउडर कोटिंग्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कोटिंग्स वगैरह जो होते हैं, that is these are called as ceramics। और ग्लास जो बनती है हमारी, ठीक है, कांच जो बनती है, उसको हायर, ये सारे रिएक्शंस कैसे हायर टेम्परेचर पर ऑपरेट होते हैं प्रोसेस। तो इन प्रोसेस के अंदर में एसिड बेस बिहेवियर, कौन एसिड है कौन बेस है, that can be explained very well with the help of this concept. The approach can be extended to include other negative ion system, ठीक है, the approach क्या कर सकता है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, इंक्लूड अदर नेगेटिव आयन सिस्टम लाइक हालाइड, सल्फाइड एंड कार्बोनियम, ठीक। इन दिस वे दिस इज अबाउट द लक्स फ्लड कंसेप्ट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑक्साइड डोनर जो होता है वो बेस होता है, और ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड होता है, ठीक है। रिएक्शन कहाँ पर अप्लाई होती है, नॉन प्रोटॉनिक सिस्टम के लिए स्पेशली एप्लीकेबल है, ठीक है, जो सिस्टम के अंदर प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे सिस्टम के अंदर में ये थ्योरी ज्यादा एप्लीकेबल है, जो हायर टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट होते हैं, मेटालर्जिकल रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज KDLC कंसेप्ट या सॉल्वेंट कंसेप्ट भी कहा जाएगा इसको, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। So based on the characteristic cation or anion of the solvent which is produced by it with the solute, both or a more general definition of acid and bases is applicable to all solvents provided by this solvent system. According to this system क्या कहना है, ये क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक कैटायन और एनायन ऑफ द सॉल्वेंट, इसके बारे में बात करता है। कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक कैटायन या तो प्रोड्यूस करती है, वो कंपाउंड जो ठीक है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कैटायन और एनायन ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन विद द सोल्यूट। काय के ऊपर बेस करता है, दो चीज, एक तो कैटायन प्रोड्यूस होता है एनायन ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच इज प्रोड्यूस, सॉल्वेंट क्या करता है, सोल्यूट के साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके या तो कैटायन प्रोड्यूस करता है या एनायन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं H2O, ये हमारा सोल्यूट समझ ले रहे, ये सॉल्वेंट समझिए आप इसको। तो ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर एक कैटायन प्रोड्यूस करता है H3O+, और एक एनायन प्रोड्यूस करता है H-। अमोनिया है हमारा, अमोनिया ये क्या कर रहा है, कैटायन बना रहा है, ठीक है, एक एनायन बना रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कैटायन और एनायन ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच इज प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है, सोल्यूट रिएक्ट विद सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस आइदर कैटायन और एनायन,
whatever cation or anion produced, it is characteristic of that solvent. वो solvent की characteristic रहेंगे, खास किस्म का आयन. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. अमोनिया अमाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है और अमोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. वैसे HF ये भी यहाँ पर दो आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एनायन और ये पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. N2O4 ये भी एक नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है और एक नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. ये हमारा एसिटिक एसिड है. ठीक है. एसिटिक एसिड ये एसिटेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. एनायन और ये एसिटोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. इस तरह से इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कैटायन हो गया और कैरेक्टरिस्टिक एनायन हो गया. ठीक. So the characteristic cations furnished by water, ammonia, hydrogen fluoride, nitrogen tetroxide, etc. are respectively as follows. इनके जो कैरेक्टरिस्टिक कैटायन हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इस तरह से. वाटर कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, ये H3O+, हमने अभी देखा है. अमोनिया NH4+. ठीक है. और ये हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड H2O H2F+, ये नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है. ठीक है. द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक आयन ऑफ दिस सॉल्वेंट्स, यही सॉल्वेंट जो हमने अभी देखे हैं उनके रिस्पेक्टिव आयन्स कौन से हैं, OH-. ठीक है. हाइड्रोक्साइड आयन NH2-, F2-, या NO3-. ये पिछले स्लाइड के अंदर हम देखिए, ये एनायन है, कैरेक्टरिस्टिक आयन्स ऑफ द सॉल्वेंट. OH- हाइड्रोक्साइड आयन, NH2-, F2-, या NO3- और एसिटेट माइनस, ये एनायंस. ठीक है. So according to this concept, an acid is a substance which on dissolution in the solvent gives characteristic cations तो ठीक है. An acid is substance reacts with the solvent, dissolution of react करता है. Acid कौन है? An acid is a substance which on dissolution in solvent it reacts with the solvent to give cation which is characteristic of that solvent. ठीक है. And base is a substance which reacts with the solvent to give anion characteristic of that solvent. ठीक है. एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है सॉल्वेंट के साथ में. ठीक है. देखिए यहाँ पर एन एसिड इज सब्सटेंस विच ऑन डिसोल्यूशन इन सॉल्वेंट, डिसोल्यूशन कहिए या रिएक्शन कहिए, एसिड फॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक कैटायन विद द सॉल्वेंट. ठीक है.
वो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट करता है और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक आयन होता है वो फॉर्म करता है। बेस क्या करता है, वो भी रिएक्ट करता है सॉल्वेंट के साथ में, और जो कैरेक्टरिस्टिक आयन है वो सॉल्वेंट का वो कैरेक्टरिस्टिक आयन तैयार करता है। ठीक है। In the light of this concept, it is seen that from 1, 2, 3 and 4 above that, all substances which gives hydronium ion in water, ठीक है, they will be called as acid. जो भी substances compounds है which will furnish H3O plus ion in the water, they will be called as acid. आ रहे समझ में? और जो भी substances है ammonium ions furnish करेंगे in the ammonia solvent, they will be treated as acid. ठीक है, H3 plus आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, H2F प्लस सॉरी H2F प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कैटायन प्रोड्यूस करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज एसिड। ठीक है, NO प्लस नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे इन नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड एसिटिक, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द एसिड। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, अगर ये एसिटोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर में, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एसिड। ठीक है, आते हैं बेस की तरफ। तो ऑल सब्सटेंसेस व्हिच फर्निश विद लिबरेट्स और व्हिच फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर सॉल्वेंट, दे विल बी कॉल्ड एज एसिड। ठीक है, all substances which form or release or which gives ammonium ions in ammonia solvent, they will be called as acid. H2F plus ion in hydrogen fluoride solvent, they will be called as acid. NO plus ion in nitrogen tetroxide, they will be called as acid. ठीक है, और एसिटिक एसिड मीडियम में एसिटोनियम आयन, ठीक, they will be called as acid. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, NH4 plus X, it gives rise to NH4 plus ion and X minus ion. So this will be treated as acid. लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर में कंपाउंड क्या कर रहा है, अमोनियम आयन दे रहा है। ठीक है, अमोनियम आयन इज कैरेक्टरिस्टिक कैटायन ऑफ दिस सॉल्वेंट, लिक्विड अमोनिया, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज एसिड। ठीक है, डेफिनेशन, एसिड इज सब्सटेंस व्हिच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कैटायन ऑफ दिस सॉल्वेंट। कैरेक्टरिस्टिक कैटायन क्या है हमारा, NH4 प्लस। ठीक है, so this will be called as acid in liquid ammonia solvent. ठीक है, in ammonia is an acid. ठीक है, now this is amine, M plus NH2 is base. ठीक है, MNH2 ये जो है it will be base. MNH2 क्या करता है, इस MNH2 ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल, व्हाट डज इट डू, इट गिव्स NH2 minus ions, it liberates, it releases NH2 minus ion, amide ion ये रिलीज करता है in the medium liquid ammonia. Now what is this, this is characteristic anion of this solvent, ये हमारा anion है, तो जो anion रिलीज कर रहा है characteristic of that solvent, that will be base. ठीक है, therefore we will call this compound as a base. ठीक है, ये कंपाउंड को हम बेस कहेंगे। ठीक है, आते हैं अगले सॉल्वेंट की तरफ, BF3 इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, BF3 इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये रिएक्ट करता है BF3 प्लस टू HF
giving rise to H2F plus and BF4 minus, forming H2F plus ions. Therefore, it will be an acid. BF3 क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है HF के साथ में, ठीक है, रिएक्ट करके क्या क्या दे रहा है हमको, कैरेक्टरिस्टिक कैटायन। कैरेक्टरिस्टिक कैटायन क्या है, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर में H2F प्लस, ठीक है। सो दिस विल बी एन एसिड, ठीक है, बहुत सिंपल थ्योरी है। एट फर्स्ट ग्लांस हमको थोड़ी सी हार्ड लगती है। क्या है ये थ्योरी के अंदर कंसेप्ट, देखिए सिंपल कंसेप्ट है कि एसिड हो या बेस हो, वो रिएक्ट करता है सॉल्वेंट के साथ में, ठीक है। एसिड रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर कैटायन देता है और वो कैटायन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉल्वेंट का, ठीक है। बेस भी क्या करता है, सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट करता है और एनायन देता है, और वो एनायन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट, कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं हम, वो रिएक्शन जब हम अप्लाई करते हैं, तो अगर वो कैटायन दे रहा है, ठीक है, वो कंपाउंड रिएक्शन के अंदर में कैटायन दे रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक है उस सॉल्वेंट का, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। और अगर एनायन दे रहा है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है, H2O हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन देखा है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है वाटर के अंदर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो हम उसका एसिड कहेंगे, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज बेस। अमोनिया के अंदर में क्या है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर में जो भी कंपाउंड NH4 प्लस ये NH4 प्लस ये कैटायन देगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज एसिड। और जो भी NH2 माइनस अमाइड आयन देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बेस, ठीक है। HF के अंदर में क्या होगा, वो भी कंपाउंड रिएक्ट करके H2F प्लस आयन देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। और जो F माइनस देगा दैट विल बी बेस, ठीक है। इसी तरह से N2O4 में भी है, जो भी रिएक्शन के अंदर में N2 ये मीडिया जो भी सॉल्वेंट है हमारा N2O4 इसके साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, ये मीडिया के अंदर में NO प्लस अगर दे रहा है दैट विल बी एसिड। और अगर वो लिबरेट कर रहा है व्हाट से नाइट्रो आयन, नाइट्रेट आयन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बेस। एसिटिक एसिड मीडिया में भी सेम थिंग है, ठीक है। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल दो रिएक्ट करते हैं, एक एसिटोनियम आयन और दूसरा एसिटेट आयन तैयार होता है, ठीक है। तो कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, वो एसिटिक एसिड मीडियम में अगर एसिटोनियम आयन तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। और अगर वो एसिटेट आयन तैयार कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज बेस, ठीक है। इस तरह से ये थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है। एट ए फर्स्ट ग्लांस हमको थोड़ी सी हार्ड लगती है, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया NH4 प्लस, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या करता है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर जब हम इसको रिएक्ट करेंगे, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर में ये क्या करेंगे, अमोनियम आयन फर्निश करेगा, रिलीज करेगा, इसलिए हम इसको एसिड कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड अमोनिया के अंदर MnH2 ये कंपाउंड अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, MnH2 यानी इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड आयन, सो इट विल बी ट्रीटेड विद दिस, ठीक है। इसी तरह से BF3 का है, BF3 जब हम रिएक्ट करें हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर में, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैटायन क्या है हमारा, BF3 HF का H2F प्लस है, ठीक है। इट विल फॉर्म H2F प्लस, सो इट विल बी कॉल्ड एज एसिड, ठीक है। Okay, we'll stop here now. Theory is clear to you. Okay.
शेख निहाल आ रहा है क्या कुछ समझ में? शेख निहाल, हेलो। सर ये फर्स्ट मीटिंग है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट मीटिंग है, कोई बात। फर्स्ट मीटिंग है, फिर भी मैंने एस जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके आप लोगों को समझाया। ठीक, ये कौन है? शेख्स 121, कौन है भैया? शेख। ओके, रिकॉर्ड बुक वगैरह कंप्लीट कीजिए अच्छे से, उसके पीडीएफ वगैरह आपको भेजे जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 पीडीएफ मैं आपको भेज चुका हूँ, 2 एक्सपेरिमेंट की। मार्केट से आप, सर मेरे पास रिकॉर्ड बुक्स नहीं है। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड बुक नहीं है तो परचेस किए आप, खरीदिए मार्केट से, खरीद के। थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट है अभी तो। अब तक के देखिए 2 एक्सपेरिमेंट हमने कवर किए हैं, 2 एक्सपेरिमेंट आप वो पीडीएफ की शक्ल में भेज दिए हैं। एक एक पेज के एक्सपेरिमेंट है वो, 2 एक्सपेरिमेंट आप लिख दीजिए बुक के अंदर। ठीक है। तो सर प्रैक्टिकल बुक कॉलेज से मिलेंगे क्या? हाँ नहीं, कॉलेज से लेना पड़ेगी या बाहर? नहीं बाहर से ले सकते हैं कि, देखिए उसका प्रोविजन है हमारे पास। वी यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम द कॉलेज, बट एट एट दिस इवेंट नाउ डेज इट इज नॉट अवेलेबल विद अस। हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, स्टॉक थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए आप बाजार से परचेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सर मार्केट से परचेस किया। और कॉलेज वालों के पीछे मत पड़िए। बच्चे मैं देख रहा हूँ कि खामखा वो लैब के अंदर चक्कर मार रहे हैं कि सर रिकॉर्ड बुक दो। क्या जरूरत है आपको रिकॉर्ड बुक की? जरूरत ही क्या है कि हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ एज इट इज आप बुक के अंदर में लिख लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। वो आपके लिए काफी है। आप रिकॉर्ड बुक लेंगे उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक होंगी, तो कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए थोड़ा अपने अंदर। बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं वो है पुराने, पुराने को क्या करते, उसके अंदर गलत सलत और खामखा ज्यादा मैटर लिखना पड़ेगा। हम कम से कम मैटर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मैटर आपको दे। अभी तक 2 प्रैक्टिकल कर दिए, वो 2 लिखिए आप, और भी 4-5 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, वो आप रिकॉर्ड बुक के अंदर में लिख दीजिए। ठीक है। कौन है भाई ये शेख? सर यस, क्या ग्रुप बोल पर रहे हैं? सिर्फ आपके लिंक आती है, सर लेक्चर्स के नहीं है क्या? हाँ है, वो भी ठाकुर सर के कुछ प्रैक्टिकल वो भी शेयर करेंगे, आपको भेजेंगे, वो पीडीएफ भेजेंगे वो भी। ठाकुर सर है, ठाकुर सर मेरे साथ में है, वो भी आपको कुछ पीडीएफ भेज देंगे। ये भेजे भी होंगे ना बट सर आप? आपकी लिंक आती ज्यादातर ग्रुप पर इसलिए। ग्रुप में ज्वाइन है क्या आप लोग? यस सर, ज्वाइन। भेजे होंगे ना, देखो आप, उन्होंने भेजे हैं या नहीं भी भेजे होंगे तो भेज देंगे आप। ओके सर। ठीक। मीटिंग लीव करनी है क्या? क्या बोल रहे हैं? मीटिंग लीव करनी है क्या? हाँ नहीं, मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड हो जाएगी मीटिंग।